نشے کی حالت میں بیوی پر تشدد اور ذات پات کی توہین کرنے پر پولیس کانسٹیبل کو کر دیا گیا معطل۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے ریڈی کالونی میں اتوار کی رات ایک سنگین واقعہ پیش آنے کے بعد پولیس کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ کانسٹیبل نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو ذات پات کا نام لے کر گالیاں دی اور اس پر تشدد کیا۔ اس سلسلے میں رامگنڈم کے کمشنر آف پولیس امبر کشور جھا نے پیر کی رات معطلی کے احکامات جاری کیے۔ احکامات کے مطابق منچریال ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل ڈی روی پرساد کو اس وقت معطل کیا گیا جب ان کی بیوی شریشا کی شکایت پر ان کے خلاف SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس سے محکمہ پولیس کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں روی پرساد نشے کی حالت میں صرف زیر جامہ پہنے نظر آ رہے ہیں جو اپنی بیوی شریشا کو گھر سے گھسیٹ کر سڑک پر لاتے اور اس پر تشدد کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ شریشا ایک ننھے بچے کو گود میں لیے بے بسی سے روتی نظر آتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ شریشا جو درجہ فہرست ذات سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے 6 سال قبل روی پرساد سے محبت کی شادی کی تھی جو ایک دوسری برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ LRD اقامتی جونیئر کالج پرنسپل محمد شریف نے بتایا ہے کہ اقامتی اسکولز اور کالجز میں داخلوں کا آن لائن آغاز ہو چکا ہے۔ RLC محمد عبدالبصیر نے تمام اولیاء طلبہ اور سرپرستوں سے توجہ کی اپیل کی ہے۔ 14 فروری کو اہلیتی امتحان ہے۔ تمریز میں طلباء کو مسابقتی امتحان کے لیے کوچنگ بھی دی جائے گی۔ اقلیتی طلباء سے عجلت کرتے ہوئے داخلہ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ضلع KB آصف آباد کے کاغذ نگر میونسپل میں کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ صدر آتم سگنا مقامی MLC ڈنڈی وٹھل کی جانب سے کاغذ نگر میونسپل وارڈ کے 30 کے منجملہ 8 مسلم امیدواروں کو کانگریس نے ٹکٹ کا اعلان کیا۔ اس میں میونسپل وارڈ نمبر 7 سے شمیم بانو، 8 سے ارشد احمد، میونسپل وارڈ 9 سے رخسار انجم، 13 سے قمر النساء، 18 سے شاہین سلطانہ، 20 سے پٹھان تسکین بیگم، 23 سے ثنا بیگم، وارڈ نمبر 26 سے وسیم النساء شبیر کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے اور بی فارم داخل کیا گیا ہے۔ کریم نگر ٹاؤن پولیس کی بہترین پہل طلائی زیورات نقدی متاثرہ تک پہنچا دی گئی۔ کریم نگر ٹاؤن پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے لاپرواہی کی وجہ سے گم ہو جانے والے سامان کا سراغ لگایا اور اسے ایک ایماندار آٹو ڈرائیور کے ذریعے متاثرہ کے حوالے کر کے اپنی انفرادیت کا مظاہرہ کیا۔ راماڈوگو منڈل کی بوجا لکشمی 55 سالہ ایک خاتون الہند کنٹا منڈل کے جواری پیٹ گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے گھر پر ایک تقریب میں شرکت کے لیے کریم نگر پہنچی تھی۔ کریم نگر بس اسٹینڈ کے قریب غلطی سے ان کا پرس گم ہو گیا تھا۔ پرس غائب ہونے پر صدمے مبتلا متاثرہ خاتون نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے فوراً بس اسٹینڈ پہنچ کر آس پاس لگے CCTV کیمروں کی جانچ کی اور پتہ چلا کہ پرس ایک آٹو ڈرائیور نے لیا تھا اور تفتیش کے دوران انہوں نے اس کی شناخت بھگت نگر کے کولہاپوری جگن کے طور پر کی اور پھر سے رابطہ کیا۔ جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو جگن نے جواب دیا اور اعتراف کیا کہ یہ سچ ہے کہ اسے پرس مل گیا تھا۔ 1.5 تولے کی سونے کی انگوٹھی، سونے کے 3 خول، 750 روپے نقد موجود تھے۔ مذکورہ زیورات ٹاؤن سب انسپکٹر راجنا کی قیادت میں بس اسٹینڈ آؤٹ پوسٹ پر متاثرہ بوجا لکشمی کے حوالے کر دیا گیا۔ بین الاقوامی مقابلے کے لیے طلباء کو تیار کرے، ہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے اپنا بھرپور تعاون پیش کریں گے، ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ ڈیف ہوم اسکول کے طلباء کو بین الاقوامی سطح پر مختلف مقابلوں میں حصے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کریم نگر گورنمنٹ ڈیف ہوم اسکول کے طلباء نے گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے جاریہ ماہ کی 21 تاریخ تک ممبئی منعقدہ قومی سطح کے ایتھلیٹکس مقابلے بعنوان دی سائلنٹ اولمپیاڈ 2026 میں حصہ لیا اور آل انڈیا مجموعی چیمپئن بنے۔ مجموعی طور پر 28 طلباء نے سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کلکٹریٹ میں میڈل جیتنے والے طلباء کو مبارکبادی دی۔
एलआरडी म्यूनिसिपल के 12 वार्डों जैसे कि कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त में वार्ड नंबर 1 से गायत्री, 2 नंबर से महेश्वरी विद्यासागर, 3 नंबर से कौसर उन्नीसा रफीक, 4 नंबर से मंजुला, 5 से चंद्रैया, 6 नंबर से सैयद गफ्फार, 7 नंबर से भाग्यवती, 8 नंबर से श्रीवास, 9 नंबर से तिरुपति, 10 नंबर से पद्मा श्रीकांत, 11 से स्वप्ना और 12 से दशरथम को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। जिले मंचियाल के चिनू टाउन भी RSQ सीनियर लीडर मोहम्मद ख्वाजा शफीउद्दीन और उनके हम नवाओं ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने बल्दी वार्ड नंबर निर्मल में अपने अपने अंदाज में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। निर्मल के वार्ड नंबर 41 में सहाफी फहीम खान की अहलिया सादिया सुल्ताना कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। इस वार्ड में फहीम खान अपने हामियों के घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से राबता पैदा कर रहे हैं और उनके हक में वोट की अपील की। इस मौके पर नौजवान यूथ लीडर कांग्रेस ख्वाजा मंसूर अली ने तमाम राय दहिंदों से अपील की है कि कांग्रेस उम्मीदवार सादिया सुल्ताना को भारी अक्सरियत से मुंतखब करे। इसी तरह दूसरे वार्ड से भी जैसे कि 39 से तौहीदीन रफू और उनकी अहलिया आयशा को कौसर वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस उम्मीदवार है। इन्होंने भी अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है और राय दहिंदों से रब्त पैदा कर रहे हैं। इन दोनों वार्ड से ये दो उम्मीदवार गुज़िश्ता इंतखाबात में भी जीत दर्ज कर चुके थे और फिर अवाम के दरमियान कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन के लोनेवली प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हदूद में खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर नौता से मुलाकात करके कौमी सतह पर आशा वर्कर्स की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले 12 फरवरी को एहतजाजी धरने में हिस्सा लेने के लिए मुतालिका डॉक्टर को नोटिस दी गई। जिले मंचियाल के चिनूर के बलदी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों को भी फॉर्म हवाले कर दिए गए हैं। 18वें वार्ड से साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाजुद्दीन और वार्ड नंबर 1 से रानी किरण, 12 से मोहम्मद खलील नजमा और 17 से बशीरुद्दीन अजीमुद्दीन। इस तरह कांग्रेस की जानिब से वाज़ेह है कि 18 वार्ड्स में चिनूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने भी फॉर्म हवाले किए और कहा पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बोधन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पीर के दिन उर्दू में तख्लीकी और तहरीरी मौजू पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में शरीक असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिचपल्ली डॉक्टर गुल राना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया कि तलबा उर्दू जुबान पर उबूर हासिल करे और तख्लीकी और तहरीर के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारे। उन्होंने तलबा के लिए मुनक्किद किए गए उर्दू तकरीरी मुकाबलों में नुमाया निशानात हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर नाहिदा बेगम, गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निजामाबाद शोबा उर्दू के सबरा प्रोफेसर अब्दुल रहीम दाऊदी और बोधन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश, वाइस प्रिंसिपल PV सत्यनारायण, डॉक्टर बाबूराव, उर्दू लेक्चरर मोहम्मद मुदस्सिर और दीगर फैकल्टी अरकान और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। एलआरडी के जीवदान हाई स्कूल में आज दूसरे मरहले के CM कप खेलों का ऑडियो पार्था सिम्हा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर शमा रोशन करते हुए परचम लहराया गया और मुख्तलिफ खेलों का आगाज हुआ, जिससे हल्के सतह के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया। CM कप खेलों का इख्तिताम 5 मंडल सदाशिव नगर में मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर DSP श्रीवास्तव, MPDO ताहिरा बेगम, तहसीलदार प्रेम सिंह, MEO राजुलू, सर्कल इंस्पेक्टर राजीव रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले कलेक्टर निजामाबाद एला त्रिपाठी ने तलबा पर जोर दिया कि तालीम को हथियार बनाकर जिंदगी में बुलंद मुकाम हासिल करे। निजामाबाद के इलाके मुनूर कापू कल्याण मंडप में BC अखिलती अखवाती स्कूल के 10वीं जमात के तलबा से वो खिताब कर रही थी और कहा तालिब इल्म के दौर में मेहनत और एक सही मुस्तकबिल को संवार देती है। कलेक्टर ने कहा कि 10वीं जमात आला तालीम की पहली सीढ़ी है, इसलिए मनसूबाबंदी के साथ इम्तिहानात की तैयारी की जाए। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर ओल्ड जिले परिषद हाई स्कूल में तेलंगाना सोशल टीचर्स फोरम की जानिब से 10वीं जमात में ज़ेर तालीम लड़के और लड़कियों के लिए टैलेंट टेस्ट एग्जाम रखा गया था। इस एग्जाम में बेहतरीन नंबरात हासिल करने वालों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। टैलेंट टेस्ट एग्जाम में जिले टॉपर्स आने वाली जिले परिषद हाई स्कूल सिरपुटौन की 10वीं जमात उर्दू मीडियम के तलबा नादिया बानो बिनते मोहम्मद इस्माइल, DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा अब्दुल अजीज चंद्रशेखर के अलावा तेलंगाना सोशल टीचर्स फोरम के साथ मिलकर इनामात और मेडल से नवाजा।
हाफिज शेख मोहसिन बिचकुंडा ने रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर बिचकुंडा के अवाम और नौजवानों से पुरखुलूस अपील की कि आज शब बरात निहायत अजमत और फजीलत की हामी मुबारक रात है, जिसमें एक साल की जिंदगी, मौत, इज्जत, किस्मत और दीगर मुकद्दरों के फैसले होते हैं। उन्होंने कहा बल्दी इंतखाबात के पेश नजर कहीं ऐसा न हो कि हम इस बाबरकत रात की रहमतों से महरूम हो जाएं। इंतखाबात तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर ये अजीम रात हमारी जिंदगी से गुजर जाए तो दोबारा नसीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल करता है। आखिर में हाफिज शेख मोहसिन ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इस शब बरात के सदक़े हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी जिंदगियों में सलामती को नाजिल फरमाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में 2 फरवरी को इग्नो स्टडी सेंटर की जानिब से प्रमोशनल मीटिंग तशहीरी नशिस्त का एहतमाम किया गया था। इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर वाई वेंकटेश्वरु, एडिशनल रीजनल डायरेक्टर ऑफ इग्नो यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने शिरकत की थी और कोर्सेज से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। एलआरडी म्यूनिसिपल में बीजेपी का पार्टी अरकान के साथ मुनक़िद इजलास में रियासती नायब सदर कल्याण नायक और रियासती कायद पायला रेड्डी ने शिरकत करके हुकूमत पर 6 गारंटी स्कीमात की अदम तकमील का इल्जाम लगाया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर बलदी इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी इंतखाबी मुहिम में सिद्दीपेट बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन और अपने हमरा रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीशा, बीजेपी जिला सदर श्री शलम, साबिक बीजेपी सदर के सिवास मजदूर कायद भट्टाचार्य के साथ मिलकर बलदी इंतखाबी जलसे से खिताब किया। बल्दिया निर्मल के जुमला 42 वार्ड में तमाम उम्मीदवारों के बी फॉर्म दाखिल कर दिए गए हैं और कांग्रेस बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि सदस्यीन बल्दिया का ओहदा खातून के लिए मखसूस है, जबकि सियासी हलकों में सदस्यीन के ओहदे के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार पायला काव्या मुतवक्किल है। इनके शौहर ए गणेश चक्रवर्ती, जो साबिक सदस्यीन बल्दिया रह चुके हैं, अब अपनी अहलिया को सियासी मैदान में उतारा है, क्योंकि सदस्यीन का ओहदा खातून के लिए मखसूस है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गणेश चक्रवर्ती मनु कापूर तबके से ताल्लुक रखते हैं। जगतियाल बल्दिया चेयरमैन की नशिस्त से बीसी खातून के रिजर्व किए जाने पर इस ओहदे की दौड़ में जबरदस्त रस्साकशी देखने में आ रही है। बहुत से लोग अपने अहल खाना को पर्चे नामजदगियां दाखिल कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताया गया कि चेयरपर्सन का ओहदा कौन हासिल करेगा। एलआरडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 10 में भी आइस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से नौजवान कायद मोहम्मद यूनुस इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। इस वार्ड में 2 रुखी भी मुकाबला होने की तवक्को है। जगतियाल म्यूनिसिपल इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के टिकटों की तकसीम को लेकर जीवन रेड्डी की हामियों में सख्त नाराजगी की लहर दौड़ गई और संजय कुमार एमएलए के खिलाफ गाली गलौज की गई। आज यूट्यूब सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त मंजर आम पर आते ही टिकट को लेकर उम्मीदवारों में अचानक खलबली मच गई और जीवन रेड्डी की रिहायशगाह पहुंचकर मुकामी रुकन असेंबली संजय कुमार के खिलाफ बरहमी और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जीवन रेड्डी फहरिस्त को देखकर सख्ते में आ गए और सख्त नाराजगी में अपने गुस्से को जब्त करते नजर आए। कांग्रेस क़यादत एमएलए संजय की जानिब से झकाव करते टिकट के मामले जगतिया और रायकल मंडल 2 म्यूनिसिपलिटी में ज्यादा टिकट संजय कुमार के हामियों को मखसूस कर दी।